Okay, Jai Baba, everybody. It's 6 o'clock sharp and time to start our meeting. We shall first commence our meeting with a short prayer. Para, could you do the prayer, please? Avatar Meher Baba Ki Jai. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba Ki Jai. Avatar Meher Baba Ki Jai. Avatar Meher Baba Ki Jai. Jai Baba, everybody. Before we commence, I would like to invite our one and only Lord Meher Baba to come and join us for this meeting. Not only just join us, but also take over the entire proceedings of this meeting, so that whatever is spoken or done happens as per his wish. Thank you. दिवाली आई और चले गई। इस समय the thought that came to my mind was, as a Baba lover, what have we learned? उन्होंने कहा है कि come not to teach but to awaken. So what is the awakening that we should take home during this Diwali? And we can go into that discussion after the speaker's program is over. But before that, I would like to invite Mr. Vijay Bhalekar. Mr. Vijay Bhalekar is the son of Sulu Bhalekar, who was a very dear disciple of Meher Baba. We've got lots of stories, and he's going to sing some ghazals as well as the begin. So all in all, it's going to be a great program. To introduce Mr. Bhalekar, he is presently retired from the Defense Services as the Additional General Manager from Khadki, Pune, and staying at Wakad in Pune. He was born in a Baba family and got his first touch
and blessings at Nagpur in 1953 at the age of 21 months at Barrister Verma's bungalow, and then met Baba at Guru Prasad, Pune in June 1960, then in 1962 East-West Gathering, 63-64 Pune, and the last darshan at 1969 at Mehrabad. Since then, he's been continuously visiting Mehrabad and Mehrazad every year constantly and in touch with them, and has been in touch with the Mandli and his lovers. He's fond of singing Baba's bhajans and ghazals, has visited Myrtle Beach Center many times and met the Western Mandli in America and many lovers. So over to you, Mr. Bhalekar. Jai Baba. Jai Baba. Thank you, Mr. Sam Patel ji, Please for thank inviting me. Baba for everything. Sam Patel. And my loving Jai Baba to everyone here present, listening me. I know most of them. Yeah. So it is a pleasure. And I am not a good speaker, Samji. I sing. Singing bhajans is my hobby. But because I met Baba in person, so for the future generation, it is very helpful. सर बीच में हिंदी में भी बोलते जाइए. जी जी जी. तो मैं आई विल ट्राई टू मिक्स बोथ. और तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं. और सबसे पहले तो मैं मेरा जो बैकग्राउंड बताऊंगा, मेरे फादर का बैकग्राउंड, वो कैसे आए बाबा के पास एट द एज ऑफ 14. देन मेरे बारे में बताऊंगा, और जो कुछ भी मेरा परसेप्शन है बाबा के बारे में, वी कैन टॉक. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप मेरे को बीच में रोक सकते हैं और पूछ सकते हैं. तो सबसे पहले तो जो है मेरा परसेप्शन कि बाबा हैज ट्रांसफॉर्म्ड माय लाइफ, and he has shown me the way of life and the goal of life. So I am very thankful to Baba and for bringing me into his fold. उनके पास बुलाने के लिए मैं प्रीतम बाबा का बहुत ही ऋणी हूँ. और ज़्यादातर मैं अपने फादर के थ्रू ही वॉज वेरी इंस्पायरिंग मीडियम फॉर मी टू बी कनेक्टेड विथ बाबा. और मुझे बाबा का टच पहला 1953 में ब्रिगेडियर अपना बैरिस्टर वर्मा के बंगले में मिला. बाबा जब नागपुर विजिट कर रहे थे तो उन्होंने फादर को बुलाया वहाँ नागपुर में. एंड उनको जल्दी जाना था, लेकिन मेरा फादर लेट हो गए, तो ही वेटेड देयर. और जैसे ही वो आए तो फिर वो मिले उनको और मेरे का सिर हिलाया ऐसा, एंड देन ही लेफ्ट फॉर. सो दैट वाज माय फर्स्ट टच. बट उसके पहले मैं मेरे पिताजी के बारे में बताना चाहूँगा कि इन 1938 when Norina Machbeli came to Nagpur with Baba, so he read in the news, that was in the newspaper. They visited somewhere in December 37, and that was in the newspaper. And when my father saw the picture of Baba at the age of 14, he was greatly attracted. He was studying in school, model school at Nagpur. And so then उन्हें पता लगाया कि कौन कनेक्टेड है. then he came to know about पापा जसावाला, और पापा जसावाला के पास वो मिलने गए उनके घर पर. एंड ही एरश भाई भी थे वहाँ. ही एक्सप्रेस हिज क्यूरियोसिटी कि मैं तो बाबा से मिलना चाहता हूँ.
तो फिर उन्होंने बाबा को लिखा, पापा जैसा वाला ने, कि देर इज ए बॉय सुलू एंड ही इज वेरी ईगर टू मीट यू। दैट वाज इन जनवरी 38। और बाबा ने इमीडिएटली रिप्लाई आता वहाँ एक वीक के अंदर कि उसको भेज दो मेरे पास। तो एरच भाई जो थे वो उनको स्टेशन लेके गए, उनको टिकट खरीद के दिया और 2 ऑरेंजेस का टोकनी उनको दिया कि बाबा को दे दो। उस समय बाबा पंचगनी में थे। तो उस समय जब नागपुर से कल्याण आना पड़ता था, कल्याण से फिर पूना कनेक्ट होके फिर पूना से फिर पंचगनी। तो स्टेशन में सेंड ऑफ करके गए। कल्याण में जो वो ट्रेन बदल रहे थे, अच्छा, तो वो आउटर में गाड़ी थोड़ा रुकती है, तो वो समझे कि शायद कल्याण आ गया है, तो वो उतरने लगे और ऑरेंज की टोकनी को वो नहीं छोड़ा था, पहले ऑरेंज की टोकनी लेके वो उतर गए। और जब सूटकेस के लिए हाथ बढ़ाया तो वो गाड़ी चल दिया। तो उसमें सभी कुछ था, उनका जो भी टिकट विकेट, बाबा का फोटोज भी था उसमें कुछ, और वो तो गाड़ी चल दिया। एंड ही रेन हियर देयर कि अरे मेरा ये, तो देयर वाज नो यूज। एनीवे समहाउ ही बोर्डेड द पूना ट्रेन, और पूना में उतर के देन ही केम आउट ऑफ द ट्रेन। सो ही वॉज रियली वेरी परटर्ब्ड, बहुत दुखी थे। तो बाहर आए और देखा कि वहाँ एक बस खड़ी है। तो बस के ड्राइवर के पास आते हैं वो, और बोलते हैं कि मेरे को तो पंचगनी जाना है, मेहर बाबा के उधर, तो क्या तुम मेरे को हेल्प कर सकते हो? मेरा तो सब कुछ चोरी चला गया, ऐसा ऐसा हुआ। Luckily, that driver, he worked in Baba's bangla and later on he got job. तो बोले हाँ हाँ मैं जानता हूँ, he trusted his story, otherwise who trusts little boy। बोले बैठो बस में, मैं छोड़ देता हूँ। एंड पंचगनी वहाँ उधर स्टेशन पे आए, बस स्टेशन। बाबा ने अपने भाई जाल भाई को भेजा कार लेके कि बोले ऐसा ऐसा लड़का है और वो ऑरेंज बास्केट है उसके हाथ में, जाओ वो ऑरेंज उसको लेके आओ यहाँ। तो जाल भाई वहां आए, उन्हें पहचान लिया देखते ही कि अरे ऑरेंज बास्केट है इसके पास और ऐसा है। तो उसको लेके कार में वो गए। तो कार में जब वहाँ बाबा के बंगले में उतरे वहाँ, तो वहाँ बाबा तो उस समय नहीं थे, बट मोहम्मद मस्त था। सो ही सा मोहम्मद मस्त देयर। और उनका एरच माई का मदर था वहाँ से, या तो वहाँ तो बोले बैठो, बाबा आते हैं अभी। थोड़ी देर के बाद बाबा आए और बोले, ये देखते ही ये आ, बाबा के पैर में गिर गए और ऑरेंजेस वगैरह दिए। तो बाबा ने कहा कैसा, फिर स्टोरी सुनाया कि बाबा मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। बोले कोई बात नहीं, यू यू लास्ट लूज एवरीथिंग बट डोंट लूज मी। और फिर उनको विष्णु जी को बुलाया और बोले इसको जरा खाने वाने के लिए लेके जाओ पास के रेस्टोरेंट में, और फिर उनने उनके रहने का इंतजाम किया। दूसरे दिन जब सवेरे ही वो उठे, तो वो नहा धो के बाथरूम में थे। तो इतने में उनका दरवाजे में नॉक होता है। तो बोले सुनो सुनो, बाबा इज कॉलिंग यू। तो वो उन्हें पानी डाला था ऐसे ही, ब्रीफ पहने हुए थे ऐसे ही। तो वो सब छोड़ के वैसे ही एकदम बाबा के पास दौड़ गए। और वहाँ बाबा बैठे थे हॉल में, साथ में और भी लोग बैठे थे। तो जाके बाबा के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो बाबा ने उनको देख के चड्डी में गिला और ऐसा आके हाथ जोड़ के खड़ा है, तो बाबा मुस्कुराए। तो बाबा ने उनको देखा
और कमेंट किया फिट फॉर द पाथ, खुश हो गए। फिट फॉर एट द एज ऑफ 14 बाबा। फिर बाबा ने उनको पूछा कि व्हाट थॉट्स वेर इन योर माइंड लास्ट नाइट। तो बोले बाबा आई वॉज आई वांटेड टू मीट यू इन नेकेड। सो बाबा न्यू जो ही है, तो बाबा ने उनको वैसे ही बुला लिया। सो ही वॉज देयर इन द नेकेड एंड फिर ही हैड अ फॉन्ड ऑफ मेडिटेशन। उनको क्या लगता था, ध्यान लग जाता था। स्कूल में भी वो ट्रांस में चले जाते थे द बॉय। तो उसको टीचर ने भी, जो हेड मास्टर है, उनने भी बोला था कि इसको डिस्टर्ब नहीं करना अगर ये जाता है मेडिटेशन में, ट्रांस में। बाबा ने उनको 2 दिन रखा और उनको इंस्ट्रक्शंस दिए। तो मेरे पास उनका लिखा हुआ, उनने आदि जी को उनका जो है लिख के दिया था। आदि के ईरानी बाबा का सेक्रेटरी ने उनसे मांगा था। सो उनने कुछ उनका लिख के दिया। तो बाबा ने उनको बोला नेवर टू टेल ए लाई। आई, हाँ, सो इधर वो लिखते हैं कि आई कन्वे टू बाबा दैट आई हैड ए थॉट ऑफ विजिटिंग हिम नेकेड ड्यूरिंग नाइट एट हिज क्वार्टर्स। I told him that I spent some hours in the night in singing shlokas, poem. Hearing this, Baba remarked, through Vishnu, fit for this path. And I felt satisfied that after all, Baba appreciated my thoughts and I was successful in the test. He then issued me the following spiritual instructions to be practiced in my life for future on 11/4/1938. This was printed in Awakener magazine. Phyllis Frederick को दिया था उस समय. That was in 1960 के 70 के आसपास. So जय बाबा हबूबी जी. So never to tell a lie. Second, never to do any lustful action. Never to eat meat, fish and eggs. Never to hammer anyone, या किसी को harass नहीं करने का. Of course, मैंने उनका बहुत मार खाया है. But I think it's a blessing to me. I feel so good. Never give thought to lust, anger, greed, hatred under any situation. Never smoke nor take alcoholic drinks. Meditation 1 hour and 1 hour writing of Om Parabrahma Baba daily. तो ही वॉज सो मच फॉन्ड। एक बार ऑफिस में सब पेपर्स पे उन्हें वावा 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 लिख दिया। फिर बॉस ने बुलाया उनको। सो ही वॉज फेमस फॉर मेहर बाबा इन द ऑफिस। ही आल्सो एम्प्लॉय इन द डिफेंस, क्लरिकल. So when he got job in 1941 at Jabalpur, so Baba permitted him to join at gun carriage factory. That is also defense. And yeah. So then Baba kept him for 2 days, and then he sent him back to Nagpur, and he was very happy. And then Baba उनको time पे बुलाते थे. And then 1944 बाबा से कांस्टेंट कम्युनिकेशन में थे. फिर हैदराबाद में भी एक मीटिंग हुआ था 1945 में. बाबा ने उनको बोला था 2 महीने का तैयारी करके आओ मेरे साथ रहने का. And but then he sent him in 2 days. He said कि living with the Godman for 2 days is equivalent to 2 months. And then Baba asked him whether he would like to stay with him as a mandali. And Baba said, my mother might take objection. उनको थोड़ा objection हो सकता है. So Baba ने कहा कोई बात नहीं. You keep in touch with me. Stay wherever you are work. And उनको silence मौन रखने का भी instruction दिया था. So once he kept silence for 3 weeks, could not, and then he continued it.
वो साइलेंस उनको छोड़ते नहीं आता था. Then it was reported to Baba. So then Baba called him. So he went there, escorted Mr. Sharma थे जबलपुर से, तो he escorted him. And बाबा ने उनको महराजात में बैठाया, बुलाया, बोले कि I will send you back to Himalayas. Maybe some yogi. So then he broke his silence and all. He got married. So Baba called him his Sudama also. Later on, I read in the Lord Meher. So and I showed him, देखो Baba is appreciated you, so and he was happy. So Baba called him his Sudama, and he praised him because his trust and faith. Baba appreciates his trust and faith. So and so there is that page I sent you. So that's just a reference in Lord Meher, Sulu and Sudama. Yeah. So and he attended 1955 Sehwas also, and then ये जो he लॉर्ड मेयर का was पेज लगाओ, जी. वो लॉर्ड मेयर का पेज लगाए. नहीं ठीक है, वो थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज टाइम का भी ख्याल रखना है, तो आखिरी में मैं पढ़ सकता हूँ, बट इफ यू फील आई कैन रीड इट फ्रॉम और ये पेज खाली रखते हैं, आप बोलते जाइए, पेज खाली जी 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 पढ़ना हाँ हम हाँ. कर लेंगे. सो मैं जो short on the 11th, a letter from Sulu Meshram of Nagpur was received and read out. Baba was in a good mood and remarked, "Such devotees and lovers should be worshipped." Baba then joined his both hands together, closed his eyes, praying something. So the Mandli had never seen him before. He had the letter read out again and observed, "Sulu is greater in the sense that he loves me with such deep devotion. He has seen me only once in Panchagani in 1938, and since then has been kept away, far away. Lovers in that respect are truly great. Why did Krishna wash Sudama's feet and drink the water? Because of Sudama's love. He washed not the feet, but the love of Sudama and drank its waters. God always is, was, and ever will be. But the existence of God's great and true lovers like Sudama of Krishna, Sulu, and others now reflects God's true greatness. The greatness of their love is such that it creates faith in a master whom the poor, ignorant lover does not truly know at all. But because of firm faith, the follower is ready to give up his very life for the master. Is not that greater than God? God is always great in his infinity. But if lovers, in spite of their finiteness, rise to give up all, sacrifice their lives just for love and faith in their beloved, whose true being they do not at all know, it is indeed greater. That is why God, even in spite of his infinity, boasts to the greatness in recognition of the spirit of selfishness that he beholds in the love and faith of his true lover. We don't know, he appreciated that the people who don't know, who have not seen God's actual form, but still they are so much devoted and they have that trust and faith in Him. That's what Baba appreciates. Yeah. यानी So that कि is for बाबा ने all of us. Like के my, पिताजी को कृष्ण के सुदामा से कंपेयर किया था. yeah, Sulu and Sudama, हाँ. because he appreciated his trust and faith. He was like ये a आपका Mazur. पिताजी का पिक्चर है, वो हाँ बाबा के बाजू में सूट में खड़े हैं जी, 1955 का है. 1955 में. ये जबलपुर ग्रुप है, ये राजा सागर खेर हैं, ही वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड पर्सन. अच्छा. देन ये मिस्टर मुनिराज जी हैं राइट साइड, मिस्टर मुरली काले ये चश्मा लगा के छोटे काले कोट में हैं, जी. एंड देन बीच में मिस्टर सूबेदार जी हैं वहाँ के. अच्छा. So ये जबलपुर group was a really very good group, and there are so many like Mr. Pankaj, Murli Kale, Girjanandan ji Dubey, and yeah, Vadya ji, ऐसे
काफी लोग थे, and still the group is there working. And even Baba wanted that Vandala place. He acquired that place, and he told Papa Jasawala to construct a similar structure like Samadhi here at Mehrabad, and that was built there in 1935 on 100 acres land. Somebody donated one Mr. Chaudhary, he donated 100 acres land because Baba saved him from murder charges. So then Baba said, no, I don't want to take this land. He said, no, Baba, you have to take this land. He so much insisted. So Baba said, okay. So that 100 acres land was there. And still that, of course, now it is captured by so many his relatives and so many people. But that structure is still there. It is like Mehrabad Samadhi. Yeah. So that is one thing. So anyway, so my father used to visit him, and 1955 yeah, he invited him once to come to Jabalpur, I know, and then every thing preparation were made. I remember I was 5 year old. My father hired a guest house, factory guest house, and all. But then Baba said he will come after 700 years. So that was so that's the one. So in that Baba he got very upset, and my father has the audacity to write to Baba that how can God means change from his promise. So I think there is a page in God Speaks. Baba says God is beyond all promises. One promise or 700 promises. God is not bound to any promise. So it is given in there. Yeah. So he's the highest of the high, Baba Meher Baba. So how can he bound by the promise? He is the reality. We are the shadow. We are fake illusion. Yeah. So anyway, so then time to time in 1958, Baba he 59 he did not go to Guru Prasad to meet Baba. So then Adike Irani Baba sent him a telegram. That two-page telegram is there, and if you like to show, that was in June 25, 1959. And Adi Kairani said that we were all looking for you. There were thousands of people, they came and gone, darshan. But he was not there, so Baba spotted him. Why Sulu has not come? And he sent this two-faced telegram. And Adi Kairani wrote, we were all looking for you. And even the last day we were watching every person, you didn't come. And Baba would be the happiest to see you. So this kind of devotion he has. So then in that reply, me and my father took me along. So it was like an invitation from Baba for both of us, and because the children were not allowed, yeah. But since we were special invitee, and of course there were some selected kids from Bombay, I saw some 4 or 5 kids. So anyway, and Baba asked him if he could stay in that RHS house there. Baba said, no, Baba, I made arrangements with my friend's house at Ganesh Ken. And so then 8th June, we went there. By bus, we went there. We were little late. And I was very curious. See, my I have grown up in those activities, traditional activity, festival, like the place where we lived, Ram Leela, then Janmashtami, and this kind of activities. So I had that very means that spontaneous अटैचमेंट मैं मतलब एक उनके लिए एक भावना थी कि बहुत ही धार्मिक भावना झुकाव था मेरा भी तो मैं पिताजी के साथ साइकिल में मेरे को लेके जाते थे मस्तों के पास
बाबा आस्क्ड हिम कि अरे मस्त का पता लगाओ। तो मंडला में एक मस्त थे दादा धनीराम बाबा, तो मेरे को साइकिल में बिठा के 14 माइल साइकिलिंग करके वो लेके जाते थे। एक वो उधर पहाड़ियाँ थी, वहाँ कुछ साधु लोग थे, उनके पास वो वहाँ जाते थे, वहाँ ध्यान करते थे गुफा में। सो ऑल दिस एक्टिविटी, सो आई वाज आल्सो ड्राउन टू, means got interested, and I used to meet all those people. Then there were groups like Professor Hajra and all, they were there from Jabalpur. So we used to have evening meetings till 11 o'clock, 12 o'clock, and the local people used to gather. And he was very charismatic. Professor Hajra was also little. So anyway, that's another story. And that was our Jabalpur thing. So there was a spontaneous जो खिंचाव होता है। फिर मुझको एक बार क्या हो गया, मेरा घर एक मजार के पीछे था। मेरे मतलब मजार घर के साइड में एक मजार होता था। तो वो मजार में लोग आते थे, चादर वगैरह चढ़ाते थे। तो एक दिन क्या हो गया कि मैंने घर को लॉक किया, मैं और फादर ही थे। तो मैंने घर को लॉक किया और खेलने के लिए गया। सो आई वॉज प्लेइंग, मतलब आवर्स एंड आवर्स, क्योंकि घर कोई तो है नहीं, फादर आएंगे शाम को 5 बजे। एंड देन 5 o'clock when the hooter sounded, the factory hooter, then I came home। और जब ताला लगा के जो गया था तो देखा तो चाबी नहीं है मेरे। तो देन आई वाज स्कैर्ड, मैंने कहा अभी तो बहुत मार पड़ेगी, बिकॉज माय फादर वाज अ काइंड ऑफ जलाली नेचर। एंड सो और मैंने उनका पूरा गुस्सा आई फेस्ड। सो मेरा संस्कार सब मार मार के मुझको सफा कर दिया। सो तो मैं डर गया, मैंने कहा भाई अब तो पड़ेगी। और मैं गया और वो मजार के पास जाके फोल्डेड हैंड मैंने बोला कि प्लीज हेल्प बाबा, हेल्प मी। एंड आई फेल्ट इमीडिएटली hypnotized, and I started walking. Just started walking 100 feet के turn होके there were rows of quarters and I entered in a corner quarter. तो वहाँ एक मिस्टर सिंह करके थे, was a clerk in the factory। तो वो आया, he was wearing khaki pant and bush shirt, loose, Bihari guy, Mr. Singh। I asked him, so I just entered into his house, crossed the veranda, and entered directly inside the room. He was just taking off his clothes, तो वो भी चौंक गया। तो मैंने कहा अंकल आपको कोई चाबी मिला है क्या? एंड सोचा हाँ यार ये कि वंश मिला है। मैंने कहा हाँ हाँ यही तो है, मेरा चाबी है, थैंक यू। भाग करके मैं आया। तो लेटर ऑन मैं सोचता हूँ कि देखिए कि वो मजार था, सिंपली मैं वहां गया, जो भी पीर या फकीर का है वो, एंड दैट सोल हैज दैट पावर कि पहले तो उसने मेरा चाबी को लोकेट किया होगा, देन ही मुझको भेजा वहां लाइक ए रोबोट। वहां से जाके मिला दिया। सो आई that experience was really very, मतलब इंसिडेंट was very, मतलब प्रोमिनेंट एंड बहुत मेरे दिमाग में जमा हुआ था। तो कि यानी मैं समझता था कि नहीं ये सिर्फ ग्रोस वर्ल्ड नहीं है, ये तो ग्रोस तो आउट वर्ल्ड है, ये सिर्फ ड्रामा का स्टेज है, इसके पीछे भी असली डायरेक्टर और कोई है। देर बाबा ने कहा ना सटल वर्ल्ड है, फिर मेंटल वर्ल्ड है। तो ये सब चीजें हमको बचपन से ही मतलब इसका एहसास हो गया था। तो फिर बाद में, क्योंकि हमने तो रीडिंग उतना किया नहीं, बाद में जब ये बाबा के बॉडी ड्रॉप करने के बाद फिर जब ये सब गॉड स्पीक्स एंड डिस्कोर्सेस एंड व्हाट नॉट, तो थोड़ा इंटेलेक्चुअल हुए, देन एक्सप्लोरिंग। लेकिन जब तक बाबा थे 69 तक, उसके बाद हमने, हाँ तो मैं आपको मेरा जो बाबा का जो 60 का जो है कुछ घटनाएं आपको बताऊंगा, कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग बाबा का प्रेजेंस का। तो जो पहले दिन तो
मैंने क्या किया, तो मैंने ये घटना इसीलिए बताया कि जब ट्रेन से आते समय मेरा दिमाग में था कि अरे बाबा से मिलने जा रहे हैं, तो मैं पूरा ट्रेन में मेरे थॉट्स थे कि बाबा कैसे होना चाहिए, कैसा होगा। आई स्टिल रिमेम्बर माई थॉट्स इन द ट्रेन कि बाबा कैसे होंगे। आई वॉज वेयरिंग व्हाइट हाफ पैंट एंड व्हाइट शर्ट एंड सो जब गुरु प्रसाद में आए, सो आई वॉज रियली क्यूरियस। कोई नहीं था, ओनली इनवाइटीज थे वहाँ सवेरे के टाइम में। एंड बाबा पर्सनल इंटरव्यू दे रहे थे रूम में। एंड तो मैंने आई केम टू नो वो जो हॉल है, हॉल के साइड में जो रूम है उसमें बैठे थे बाबा। तो वहां मुझको एहसास हो गया कि बाबा इस रूम में बैठे हैं। तो मैं बार बार उस रूम से इधर जाना, फिर सामने से ऐसे आना, 2-3 बार निकला। फिर मैंने क्या किया, मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने जो विंडो था, बाबा के साइड का जो विंडो वो बंद था, तो वो जो शटर था, वुडन शटर, उसको ऐसा उठाया और अंदर झांका। तो देखो बाबा बैठे हैं, एरज का बैग मेरी तरफ था एंड बाबा वाज गिविंग टॉकिंग टू समवन। और मैंने फोकस किया ऐसा करके और आई गॉट एब्जॉर्ब एकदम बाबा के फेस में ऐसा करके, एंड आई वाज देयर फॉर फ्यू मिनट्स, आई डोंट नो कितना टाइम हो गया। बट देन आई फेल्ट समबडी ग्रैब, किसी ने मेरा कॉलर पकड़ के ऐसा खींचा। मैंने पीछे देखा तो एरएच फाई थे, मैं तो पहचानता नहीं था कौन। तो मेरे को जोर से डांटा, बोला ये तरीका है तुम्हारा, तुम अंदर झांक रहे हो बाबा का रूम में, हाँ किसके लड़के हो, क्या है, थोड़ा जोर से बंद करो इसको। हाँ ऐसा करके जोर से डांटा, मतलब मेरे को तो मैं एकदम घबरा गया, आई वाज ऑलमोस्ट क्राई। तो बाद में थोड़ी देर के बाद जब उनको पता लगा अरे ये सुल्लू का लड़का है आया है, तो एरश भाई वापस आए, फिर मेरे को बहुत प्यार किया, किस किया। देन आई बिकम सो नॉर्मल। हाँ फिर इतने में फिर वो रुस्तम सौरभ में वो दोनों, एक भाई दौड़ के आए, सुनो 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 सुनो, बाबा इज कॉलिंग यू। एंड विदाउट एक पल नहीं वेस्ट करके, यू टू बी रेडी देयर कि हाँ यानी बाबा बाबा बुला रहे हैं, तो उसी God cannot wait for it. How can when God's call is there, you have to rush. So अंदर गए एंड बाबा बैठे थे। बाबा ऐसे खड़े थे, फिर उठ के बैठ गए हमारे सामने ही, ऐसे आके ऐसे बैठ गए। फिर फादर को पूछते हैं तुम किधर था, 5 तारीख को आने वाली थी तुम। 5 तारीख को कम से कम 5,000 लोग आके गए, दर्शन करके गए, तो 5 तारीख को क्यों नहीं आए बाबा, उनको पूछते। तो बोले बाबा मेरे को तो ऑफिस का भी प्रॉब्लम था और आई वाज नॉट वेरी स्पेसिफिक कि मेरे को 5 तारीख को ही आना है और ये करके। तो बाबा उनको हग वगैरह किया और मैंने बाबा को देख रहा था। फिर मैंने कहा मेरे को भी कुछ बात करना चाहिए, आई वाज, मैंने कहा बाबा मुझको अंधेरे में डर लगता है, आई गेट स्कैर्ड इन द डार्कनेस। बाबा लुक्ड एट मी, बोले कि मेरा नाम लेता है ये। तो मैंने ऐसा घुटने पे ऐसा करके मैं बैठा था बाबा के सामने झुक के, और मैंने कहा, वो थॉट उस समय मेरे दिमाग में आया ये कि अरे बाप रे ये तो गॉड है, इनको तो मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो मैंने कहा ऐसा करके, नो बाबा, ऐसा करके जोर से हिलाया क्लियरली, नो नो। बाबा सेड टेक माय नेम। तो it was really means command, I take it, and Baba said take my name, an order, and ये जो है मोमेंट मेरा लाइफ का एकदम ऐसा लगता है कि जब भी मैं, जो मेरा स्वीट मेमोरीज है लाइफ का, तो उसमें ये जो 3-4 दिन थे। तो एक दूसरा मेमोरी है मेरा कि या कि या बाबा एक दिन, हम 4 दिन थे वहाँ, 11-8 को आए थे, फिर 11 तारीख को बाबा ने बोला था कि जाओ। तो वो दूसरा था कि हाँ टेकिंग, हाँ तो वरांडा में हम लोग फिर लंच लेते थे।
वरांडा में, जो बंगले का जैसे ही बाहर से एंटर करते हैं, और बाबा बीच में से चलते थे, बोलते थे खाओ, दबा के खाओ। तो बाबा का फीट दिखते थे सामने, बाबा का जो सदरा है और फीट उनका, और हम लोग खाना खा रहे नीचे बैठ के। तो दैट इज ए वन सीन। फिर वो था कि बाबा रूम में कार्ड्स खेलते थे। एक दिन बाबा का साथ में कार्ड्स, तो 10-12 लोग थे रूम में, कुछ लोग एक साइड थे, ये थे, तो मुझको तो गेम में इंक्लूड नहीं किया। तो मैं बाबा के पैर के पास राइट लेफ्ट साइड में मैं बैठ गया, और जब वो कार्ड बांटते थे, मेरे को कार्ड नहीं दिया बट उन लोगों को दिए, और फिर जब कार्ड जब ओपन करते थे तो वो एकदम शो ऑफ किया, तो फिर वो जो हारने वाले वो रब करते, और बाबा, आई कुड सी बाबा फेस, और बाबा इतना मजा करते थे, लाइक चाइल्ड ही वाज लाफिंग एंड ही, और वो दे वर रबिंग द नोज बाबा के सामने। तो दैट वाज, तो थोड़ी देर के बाद मैं थोड़ा सा मतलब रेस्टलेस सा हुआ, तो मैंने देखा वहां एक स्विच रखा हुआ है। तो वो स्विच ऐसा था कि जब आप दबाओ उसको तो अटेंडेंट आता था। तो मैंने जस्ट वो स्विच पकड़ा, उससे खेलने लगा, उसको ऐसा करके दबाया, तो अटेंडेंट आया। तो बाबा ने बोला मैंने तो नहीं बुलाया। तो चला गया। दूसरी बार आया तो मैंने फिर से उसको ऐसा दबा दिया, आई वॉज ऑल्सो इग्नोरेंट। हाँ, तो बाबा ने एरज को बोला देखो कौन है। सो दे कॉट मी होल्डिंग द स्विच। बाबा बोलते कि ये चंचल लड़का है। ही वॉज नॉट, नाराज नहीं है, तो बोले चंचल लड़का है, तो फिर बताया कि अरे उसको नहीं पकड़ने का, वो स्विच है। तो हाँ, एक दिन क्या हुआ कि देर वॉज ए डेड बॉडी प्रोसेशन जा रहा था गुरु प्रसाद के सामने से, एंड तो बाबा बाहर आ गए रूम के, और भी मंडली के जन थे, करीब 10-12 लोग थे उसमें। एंड बाबा वाज लुकिंग एट द प्रोसेशन, वो मेन रोड से, लाइक ही इज पियर्सिंग थ्रू हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। उसका जो सब लोग शांत थे। आई केम देयर लाइक मेकिंग साउंड, एंड देन द मंडली सेड बाबा। तो आई जस्ट मतलब फ्रीज हो गया। देन बाबा टर्न्स हिज फेस ऐसा करके, और ऐसा करके मुझको देखा, लाइक ए चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी, मतलब ऐसा नहीं था कि अरे डिस्टर्ब कर दिया मेरे को या क्या है ये, ऐसा नहीं। ही जस्ट लुक्ड सो इनोसेंट एंड चाइल्ड्स, वो जो नजर था उनका, आई कैन नॉट फॉरगेट कि इतना इनोसेंट और उतना उनका लुक था। तो दैट इज ए वन इंस्टेंस। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं, आई यूज टू फॉलो बाबा कहाँ जा रहा था। एक दिन मैंने देखा कि बाबा साइड रूम से निकल के एक छोटे रूम में, राइट साइड में एक रूम था, वहां चले गए। मैं दौड़ के एकदम बाबा के पीछे पीछे मैं भी वो रूम में घुस गया। तो अंदर जाके देखा, तो देखा वहां एक मूर्तिकार था। ही वॉज मेकिंग बाबास बस्ट, व्हाइट कलर का ऐसा था। वो मूर्तिकार का नाम शायद कुछ धन पड़े या ऐसे कुछ है, वो मैं विल टेल यू लेटर ऑन। तो वो बाबा अपना मूर्ति को खुद देख रहे थे, और ऐसा करके ऐसा बता रहे थे, ऐसा, और फिर उसका यहाँ से बनाओ, ऐसा बनाओ, फिर ऐसा करके खुद का। एंड आई वॉज लुकिंग एट हिज फेस एंड मूर्ति, एंड ही डिड नॉट माइंड माई प्रेजेंस, लाइक इट वॉज लाइक मी, बाबा एंड वो मूर्तिकार, ऐसे तीनों एक छोटा से रूम में थे। एंड ही डिड नॉट माइंड माई प्रेजेंस, लाइक ही पुल्ड मी देयर। तो दैट वॉज रियली, मतलब बहुत ही, जब मैं इन द कंपनी ऑफ गॉड मैन ऐसा जब मेरे को याद आता है तो मैं एकदम रोमांचित हो जाता हूँ। सो दैट वाज वन इंस्टेंस। फिर बाबा के साथ कार में बैठ के, नॉट इन द सेम कार, बाबा वाज इन द फ्रंट कार, बैक साइड में थे। देन वी वेंट फॉर द हाउस विजिट। अभी वो मेरे को मालूम नहीं किसका हाउस था, क्या था। देन प्लेइंग कार्ड्स। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि हाँ, रूम में सब लोग बैठे थे, तो बाबा बोले सबको कि भजन गाओ। तो एक एक, तो दो दो लाइन सब
गाते थे। बाबा के पास वो रहता था ढपली, बाबा उसको बजाते थे। तो मुझको मुझको तो नहीं बोला गाने को, आई वॉज 9 years ओल्ड ओनली। तो फादर ने गाया, फिर दूसरे मधुसूदन थे, उनने गाया। बाद में देशमुख जी का नंबर आया। अब देशमुख जी को बोला था, देशमुख जी चालू हो गए ऐसा करके, और हंस रहे हैं। आई थिंक बाबा एंजॉयड द मोस्ट देशमुख का वो जो राग है। सो सच ए ब्लेस्ड सोल, मतलब बाबा हमेशा उनका जो ये इंटरटेन बाबा लाइक एनीथिंग। तो रियली मतलब अभी मैं अमरावती गया था तो उनका लड़का को मिला था, वो अमरावती विलेज में। सो ही वाज हिज सन टुक लॉट ऑफ बाबा फिल्म्स। तो ये जो था, मतलब मेरे को 60 का जो था उस समय इरविन लग भी आया एक। यानी आप देखिए, बाबा तो इंडिया में लड़के को बुलाते हैं नागपुर से, लेकिन बाबा ने न्यूयॉर्क वाले लड़के को भी बुला लिया, वो भी घर से भाग के आ गया। सी ओनली गॉड कैन डू दिस, नॉट नॉट इवन सदगुरु। सदगुरु का तो एक एरिया है, उपासनी महाराज का, साईं बाबा का शिरडी है, ये तो बाबा का तो पूरा दुनिया है। हाँ, वो इरविन लग बेचारा घर छोड़ के भाग के गया, उसका फादर ने पुलिस को रिपोर्ट किया, और पुलिस ने दोनों भाई में से एक को, माइनर था तो उसको पकड़ लिया, बोले इसको नहीं जाने देंगे। इरविन लग अकेला आया था। तो इरविन लग वहां बैठता था और हम भी बैठते थे। तो वहां बैठ के फिर बाबा के पैर के पास बैठते थे। तो उसको हम, मेरे को तो इंग्लिश नहीं आता था, तो आई यूज्ड टू गिव हिम स्माइल एंड ऑल। तो फादर बताते थे कि अरे ये देखो, ये 2 दिन में 20,000 रुपए कमा के टिकट लेके आ गया। उस समय भी टिकट था $1,000, 1960 में। अभी भी टिकट $1,000, $1,200 सेम है। तो दैट वाज द वो था। फिर 62 ईस्ट वेस्ट गैदरिंग, तो बाबा ने इरविन लक को भी 11 तारीख को वापस भेजा, और हमारे फादर को भी वापस एक ही दिन भेजा। सो माय फादर हैज ए गुड कनेक्शन, मतलब करेस्पॉन्डिंग विथ इरविन लक एंड ऑल। इरविन लक रिमेम्बर्स, तो अभी भी आके गया वो, एक मेरे ख्याल से पिछले महीने आके गया। ही इज 84 नाउ एंड हियर। सो एनीवे, तो देन 62 ईस्ट वेस्ट गैदरिंग का तो मेरे ख्याल से टाइम का कितना हो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। So we have 15 minutes more, don't worry. Okay, anyway, so I will cut it short. Then ईस्ट वेस्ट गैदरिंग का भी उस समय तो इतना प्राइवेसी नहीं था, बाद में तो इतना भीड़ चालू होने लगा कि आई डिडेंट हैव दैट प्राइवेसी जितना हमने 60 में एंजॉय किया, और उसके पहले बाद में तो फिर काफी लोग आने लग गया। तो बाबा ने उनका, बाबा का हार भी वो सूते इसका सिल्क का है, वो भी ऐसा फेंक के दिया। तो ये सब है। तो देन 69 में फिर क्या हो गया कि मैं जंप मार देता हूँ। सो 69 में 62 का मैं बताता हूँ, ईस्ट वेस्ट गैदरिंग का। 11 years ओल्ड था मैं, और बाबा कम्स ऑन स्टेज एंड ही वेव्स टू द क्राउड, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, टीयर्स फ्लोइंग। एंड इतना पानी गिर रहा है, उसी समय पानी भी गिर रहा है, लोग पंडाल के अंदर खड़े हैं, अवतार, मतलब आई रिमेम्बर ऑल दोस मेमोरीज। सो या, बट देन इन 69 एक दिन मेरे पड़ोसी ने बोला, रेडियो में सुना है कि आपका मेहर बाबा शरीर छोड़ दिया। तो एकदम आई, तो एक शॉक लगा सबको, यानी लोगों को, क्योंकि उस समय तो ऐसा माहौल था कि वो लिविंग गुरु, एंड ये अरे बाबा ने बोला था मौन खोलेंगे, क्या है, देयर वर सो मेनी थिंग्स। तो वो तो एक अलग स्टोरी है। एंड बट मैं तो रो रहा था। फिर मैं बाबा के फोटो के पास आया, बाबा मैंने कहा गॉड है या वो है, मेरे को मतलब नहीं है, आई वांट टू कम देयर, मेरे पास पैसा भी नहीं था। तो फिर एक मिस्टर खराटे थे, रेलवे एम्प्लाई, वो मेरे को रास्ते में मिल गया। बोले विजय तेरे को चलना है क्या? बाबा नहीं है, और ऐसा ऐसा हो गया, मैं तो जा रहा हूँ, तेरे को चलना है तो मैं तेरे को मेरा लड़का के टिकट में पास में लेके जाता हूँ। सो दैट वे बाबा ने मेरे को बुला लिया वहाँ, और फिर तो बाबा का लास्ट दर्शन भी हो गया। बड़ा सबड्यूड था वहाँ पर, तो वो था। तो वो भी आखिरी दर्शन, पीठ पे नीचे उतर के हमने बाबा का, बिफोर इट गॉट कवर्ड ऑन 7, वो दर्शन किया।
फिर उसके बाद तो क्या हो गया, तो एनीवे, तो ये वो पादरी जी का एक कथन याद आता है कि बाबा को इन 68 वगैरह में बोला होगा, बाबा अभी तो आपका दुकान बंद करने का टाइम आ गया है। बाबा ने कहा कि अरे ना, नाउ द शॉप विल ओपन नाउ, अभी तो शॉप खुलेगा मेरा। तो शॉप खुलेगा। एंड तो फिर क्या हो गया कि जाने के बाद बाबा का जब शरीर छूटा, तो काफी लोगों को अलग अलग, किसी को कल्कि अवतार, और किसी को वो हमारा जेफ एवल्टीन को तो ऐसा है कि बाबा के साथ काफी पिया, किसी को तो नमाज कर रहे तो पीछे से लात मारा, ऐसे करके लोगों को अलग अलग एक्सपीरियंस होने लग गए। तो मैंने तो बाबा का टाइम देखा है, फिर मंडली का टाइम देखा है, और अभी का जो है, तो जब मंडे, तो इसके बाद लोग सब वैसे से आने लग गए यहाँ इंक्वायरी के लिए। अरे सबका एक्सपीरियंस हो रहे हैं, सबने सुना है ऐसा ऐसा है। तो वो तो अपने किस्से सुनाने लगे आके मंडली को। तो इरविन लक वगैरह उनका टीम, तो फिर क्या हुआ, उन लोगों ने क्या किया, सबको अपना कैमरा टीम लेके सबका इंटरव्यू लेने लग गए। वो एलन कोहेन वगैरह है, रिक चैपमैन है, ये सब वेस्टर्न, एक दूसरा ही दौर चालू हो गया। तो मंडली बोलती है कि हमने तो बाबा का ह्यूमननेस देखा, हमने उनका बॉडी देखा पास से, नाउ वी सी हिज डिविनिटी थ्रू यू पीपल। तो ये एक अलग दौर चला, और 40 साल तक, 71 से लेके और अभी तक, जब तक लास्ट टू गो भाऊजी, तो ये एक फेज था जिसमें बाबा के जितने भी जो रिव्यू हुआ, और बाबा के लिटरेचर, और क्या 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 क्या, यानी ये दौर आप तो जानते हैं, आपने देखा है इसको अच्छे से। तो ये दौर चला। हाँ, और हाँ, कितना हो गया टाइम, 6:50 या सो, या, तो मेरे को फिर बीच में 1978 में मुझे मर्टल बीच का मैंने सुना था कि वहाँ बाबा का सेंटर है, ये है, और वेस्टर्न मंडली। एंड मेरा एक हॉबी था कि जो जो बाबा से मिले हैं उनको सबको मिलो। आई ट्रैवल्ड ऑल ओवर इंडिया, और जितने लोग बाबा से मिले हैं उनसे सबसे मिला मैं हूँ। मैंने इवन वो अपने थे सरदार जी दिल्ली में, क्या नाम उनका, अपने अमर सिंह सहगल जी, उनके घर भी गया मैं। और भी जितने ये कानपुर के सीताराम, और ये, और ऑल, मतलब देशमुख साहब के यहाँ मैं जाता था। तो ऐसे जितने भी जो थे, एक मेरा हॉबी था। तो मैंने सोचा कि अब मैं किटी डेवी और इन लोगों से भी मिलूंगा, एलिजाबेथ वगैरह, ये सबसे मेरा। तो मैंने अपना वीसा, अमेरिका के वीसा के लिए अप्लाई किया, मेरा ग्रेजुएशन वगैरह हो गया था, तो जैसे विजिटर के लिए, एंड इट गॉट रिजेक्टेड। तो जब आदि जी को पता लगा, तो बोले अरे तुम्हारा कैसे रिजेक्ट हुआ, मैं काउंसिल को, यूएस काउंसिल को लेटर देता हूँ। तो आदि जी ने मेरे लिए लेटर दिया यूएस काउंसिल को, एलिजाबेथ ने दिया यूएस काउंसिल को लेटर, तो मेरा वीजा सैंक्शन हो गया। तो देन सो, बट इट वाज ए बून फॉर मी कि मैंने अप्लाई किया तो नहीं आया, लेकिन जब बाबा के थ्रू, इधर इन लोगों के थ्रू गया, तो मेरे को ऑफिशियली, मतलब लाइक बाबा इज सेंडिंग मी देयर कि जाओ घूम के आओ। तो देन आई वाज गेस्ट एलिजाबेथ, मेरे को वहाँ रखा। आई स्टेड देयर ऑलमोस्ट 50 डेज। मेरे को वीकली बुलाते थे वो लंच के लिए, मेरे को साथ में, मतलब कार में उनका जाते थे, तो वो एलिजाबेथ है, किटी है, और जेन हैंस है, और मैं, चार लोग पीछे, ऐसा कार में चार लोग पीछे बैठे। यानी वो बोले कि बाबा के साथ हम बस टूर में जाते थे, 40 लोग बैठते थे। एंड दोस रॉयल लेडीज आप देखिए, एंड कितना हार्डशिप था, बट दे यूज टू रिमेम्बर, दे चेरिश दोस मेमोरीज। मैं जाके मुर्शिदा से भी मिला 1980 में, 78 80 में, क्योंकि एक बार में पूरा कवर नहीं हुआ, आई वेंट बैक। सो ऐसा मेरा खूब सुंदर सुंदर यादगार है। बट सी, यानी बाबा, मतलब आई फील सो लकी टू हैव come to into Baba's fold, and I'm so lucky that all his lovers, और जो सबसे
I could meet them and I enjoy. I sing his bhajans, and I like to talk more, but time restrictions have maybe sometime we will talk. So I thank you listeners, all Baba lovers, and thank you once again for giving me this ऐसा मौका देने के लिए. तो आप चाहे तो मैं बिगिन गा सकता हूँ once again. जो भी बोथ, एक गजल भी आपको गानी थी वो भी गा लीजिए और बिगिन द बिगिन भी गाइए. बिगिन द बिगिन पहले कीजिए और फिर गजल कीजिए. चलो. ओके ओके ओके. ये गाना ऐसा था कि मुझको, यानी आप मतलब इस गाने से मेरा इतना लगाव था कि जैसे कि हम कहीं सी दोज यंग डेज हम डांस कर रहे हैं, मान लीजिए रेस्टोरेंट में गए या कहीं गए, बिगिन द बिगिन आ गया, तो इन जॉय आल्सो यू रिमेम्बर बाबा, इन सफरिंग आल्सो यू रिमेम्बर बाबा. बाबा इज एवरीवेयर, ही इज कीपिंग ट्रैक ऑफ यू कि देखो आई एम देयर, आई एम देयर. और जब सफरिंग्स भी, हार्ड टाइम भी आया, तो वो ट्यून आता था, कार में आया, रेडियो में आया, ये आया. सो हिज प्रेजेंस आई यूज्ड टू फील थ्रू दिस सॉन्ग. तो ऐसा कि उनका नजर है, डोंट वरी. या पहले मैं अमर तिथि में गाता भी था, लेकिन अभी तो थोड़ा when they begin, the begin, it brings back a sound of music so tender. It brings back a night of tropical splendor. It brings back a memory evergreen. I am with you once more under the star, and down by the shore an orchestra's playing, and even the palm seems to be swaying when they begin, the begin. To live it again is past all endeavor, except when the tune clutches my heart, and there we are, swearing to love forever, and promising ever, never to part. What moments divine, what raptures serene, till clouds came along to disperse the joy we had tasted. And now when I hear people curse this chance that was wasted, I know but too well what they mean. So don't let them begin the begin. Let the love that was once a fire remain an ember. Let it sleep like the dead desire I only remember when they begin, the begin. Oh yeah.
begin, make them play till the stars that were there before return above you. Till you whispered to me once more, darling, I love you. And we suddenly know what heavens we were in when they begin, the begin, when they begin, the begin. अवतार मेहर बाबा की जय. That was beautiful. Unfortunately, we are running out of time, sir. We'll have to call you back again at Yeah. later date for sure. Yeah, thank you. तो कोई Thank you. सवाल पूछना है तो please. जी हाँ, please. Does anyone have any questions for Mr. Bhalekar? Okay, no questions from anybody. 7 बज चुके हैं. So we shall stop here. We will now commence with prayers. उसके बाद आरती करेंगे. And after the prayers and the aarti, we will hold a minute's silence to connect us directly to Baba. And after that, we shall disperse. Thank you, everybody. No questions, but one of the very good evenings. Very, very good evenings. Thank you, sir. Thank you Thank very you, much. sir. Thanks to Mr. Yeah, lovely stories. Lovely stories. Lovely stories. Beautiful. Beautiful. Bhalekar sir, this is Jimmy Khan giving you compliment. Oh, thank you, Jimmy Khan ji. I know you also. I think you were there also. In 1960? Yes, yes. Yeah. Irwin That's was the year there. I met. Yeah. That's the year I met Baba. Ah, great. Hmm. Jai Baba. Thank you. Thank you. Jai Baba. Thank you. अवतार मेहर बाबा की जय. O Parvardegar, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the creator, the Lord of lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and you are knowledge itself. You are all merciful
and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the Trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the Ancient One, the highest of the high. You are Prabhu and Parameshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yazdan, Ahura Master, and God the Beloved. You are named Dizad, the only one worthy of worship. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also, we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avtar Meher Baba ki Jai. हो जावे नार जहलतनी कर खुद रत्ने फरमातू छलागी आश भक्तों ने की बख्शे नूरे मातू अयामुर शत मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर खुदा ना जात थी वाकिफ थई बै तो मेहर बातू तुझे माँ लिख हकीकत नो तू आशिक बीने आरिफ भी तुझे दरी याए वहदत मारफत नो हो ही तू फातू हमोर है रब ने सालिक बख्शे ज्ञान इज़दनु के तू पर महात्मा ज्ञानी छने मुख तारे फातू खुदाना प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सद के साखिया पी दे पे मातू
हमारी नाव भर धरिए तरावे, तो हमें तरिए हमारा ना खुदाए मेहर बाबा, छैनिगे बातू हमारा ना खुदाए मेहर बाबा, छैनिगे बातू बुझावे नार जहलत नी कर खुद रत फरमातू, चलागी आश भक्तों ने की बख्श नूरे मातू। तार मेहर बाबा की जय। हुआ लहर से ही है जिसकी सृष्टि का निर्माण, उसकी दैवी अनंतता का कैसे हो अनुमान। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्मा आओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। प्रेम दीप में ये जलाऊ, प्रेम दीप में ये जलाऊ, निबिड़ अंधेरा मिटता पाऊ, निबिड़ अंधेरा मिटता पाऊ। अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊ, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊ, तुम मुझको सरसाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। जीवन की हर सांस हमारी, जीवन की हर सांस हमारी, बन जाए प्रभु गति तुम्हारी, बन जाए प्रभु गति तुम्हारी। हे करुणा कर लीलाधारी, है करुणा कर लीलाधारी, तुम करुणा बरसाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। बने आरती जीवन मेरा, बने आरती जीवन मेरा, आदि अंत का लय हो घेरा, आदि अंत का लय हो घेरा। खुले नयन और दिखे सवेरा, खुले नयन और दिखे सवेरा, तुम मुझ में छा जाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन,
नमो ब्रह्माओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ। अवतार मेहर बाबा की जय। 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 Thank you, everybody. The program is now concluded. Until we meet again the next time, next Thursday, there'll be someone joining us from Singapore. Actually, he's our Geeta ji's son, and we shall hear him talk and share about Baba's love. Until we meet again, keep Baba with you. Jai Meher Baba. Jai Baba Jimmy. Thank you so much.